Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम Canto 3, Chapter 24, Text number 1 to 3. Maitreya Uvacha Nirvedavadinam evam Manorguhitaram Mutuhu Dayaluhu Shalinim Aha Shuklabhivyakritam Smaran. Recalling the words of Lord Vishnu, the merciful sage Kardama replied as follows to Swayambhuva Manu's praiseworthy daughter, Devahuti, who is speaking words full of renunciation. Vishnuvacha Makhido Rajaputri Putri Tham Atmanam Tati Anindite Bhagavamste Aksharo Garbham Adurat Samprapashyase. The sage said, do not be disappointed with yourself, O princess. You are actually praiseworthy. The infallible Supreme Personality of Godhead will shortly enter your womb as your son. Kardama Muni encouraged his wife not to be sorry, thinking herself unfortunate because the Supreme Personality of Godhead, by his incarnation, was going to come from her body. Dhruta vrutasi bhadram te tamena niyamena cha tapo dravina danaischa tadhaya cheshwaram bhaja. You have undertaken sacred vows. God will bless you. Hence, you should worship the Lord with great faith through sensory control, religious observances, austerities, and gifts of your money in charity. In order to spiritually advance or to achieve the mercy of the Lord, one must be self-controlled in the following manner. He must be restrained in self-gratification. He must follow the rules and regulations of religious principles. Without austerity and penance, and without sacrificing one's riches, one cannot achieve the mercy of the Supreme Lord. Kardama Muni advised his wife to have to factually engage in devotional service with austerity and penance, following the religious principles and giving charity. Then the Supreme Lord will be pleased with you and he will come as your son. Om Jnana Jnananjana Salakaya Srimad Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Svatadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। आप लोग सुने होंगे पिछले अध्याय में कैसा देवहूति और कर्दम मुनि एंजॉय किए थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं स्त्री मीन्स वो नेचुरली एंजॉय करना चाहते। जब कर्दम मुनि ने को वर दिया था, वर देना चाहते थे, देखो मेरा मिस्टिक ऑपुलेंस, अभयम प्रदान करूंगा, फियरलेसनेस। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछे थे व्हाट इट मीन्स टू बी ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद इमीडिएटली रिप्लाइड टू बिकम फियरलेस, निर्भय होना। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु जैसा महान डीमन राक्षस के सामने
उसको थोड़ा भी डर नहीं था। उसको वर्णन किया गया है निर्भय, निर्भय, फियरलेस। इसलिए तत्साधुमन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया असग्रहात्। उनको असुरवर्य देहिना, असुरवर्य बेस्ट ऑफ द डीमंस ऐसा करके संबोधित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। उसको इतना डेयरिंग, हिरण्यकशिपु का टाइम पे उन्होंने ढंडोरा पीटी थी कि कोई भी अपना बच्चा का नाम या बच्ची का नाम भगवान विष्णु के नाम के संबंधित कोई नहीं रखने का। एक बार किसी ने मुकुंद नाम रखा था किसी का, अपना बच्चे का, फिर तुरंत उसके सामने बच्चा को मार दिया, शिशु हत्या कर लिया। कितना डेयरिंग है तुमको। इसलिए पूरा हिरण्यकशिपु अपने राज्य में हरि कीर्तन पूरा बैन कर दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज निर्भय होके उनके सामने हरि का नाम ले रहे हैं। ये है निर्भय। तो प्रभुपाद जी चौथा स्कंद भागवत में 24 चैप्टर में लिखते हैं कि unless somebody is joyful, one cannot practice Krishna consciousness. जब कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं रहता है, फिर आनंदित नहीं रहता है, जब तक आनंदित नहीं रहता है वो कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता है। फिर आनंदित रहने के लिए, जॉयफुल रहने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यू हैव टू बी फियरलेस, यू हैव टू बी निर्भय। निर्भय वो प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उनको चाहिए था अंग संगम, जय करना चाहते। तो इतना तपस्या की, इतना सेवा की, फिर उसके बदले में उसको मिल सकता था अभय प्रदान, लेकिन उन्हें मांगा था मुझे अंग संगमन चाहिए, मेरे को संतान चाहिए। फिर इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, फिर भी संतुष्ट नहीं थी। फिर बाद में उन्होंने मेरे ख्याल से 9 बेटियों को पैदा करके जाना चाहते थे कर्दम मुनि। इसलिए देवहूति अपना गलती का महसूस हुआ, उसको एहसास हुआ था। इसलिए उन्होंने शोक कर रही थी कि मैंने, आप इतना महान है, भगवान विष्णु का दर्शन दिया उन्होंने, आपने मैंने क्या पूछ लिया था संजय में। ऐसा करके वो शोक कर रही थी। लेकिन कर्दम मुनि उसको आश्वासन दे रहे थे, प्रिंसेस, राजकुमारी, आपको शोक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप महान हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं देवहूति जैसे भाग्यवती संसार में नहीं रह सकती, नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनका पिताजी स्वयंभू मनु पार्शियल अवतार है, अंश अवतार, भगवान विष्णु के अंश है उसमें, प्रत्यावेश अवतार। और उनका हस्बैंड महान भक्त है, जो जिसका ज्ञान का दर्शन मिला उनको, और उनका बेटा होने वाला है भगवान विष्णु स्वयं। ये सारे संसार में देवहूति पुत्र कपिल मुनि नाम से वो प्रख्यात होने वाले थे, इसलिए बहुत ही ज्यादा भाग्यवती है। लेकिन ये शोक कर रही थी कि मैंने टाइम दिया। सबको याद करना चाहिए, रखना चाहिए, हर डिवोटी का यही स्थिति होगी विश्व में। हम डिवोटी जैसा बन गया तो, क्योंकि हम 2 नाव में ध्यान कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एक पैर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में, एक पैर कृष्ण भक्ति में। लेकिन इंद्रिय तृप्ति होने के बाद डिवोटी खुश नहीं रह सकते,
क्योंकि करने के बाद तो करेगा, बट अरे मैंने चैंटिंग छोड़ के इंद्रिय तृप्ति में लगा है, मैं भागवतम पढ़ना छोड़ के इंद्रिय तृप्ति में लगा है, मैं चैंटिंग कीर्तन में नाचना छोड़ के इंद्रिय तृप्ति में लगा है करके, क्योंकि उसको आनंद मिलता है। ये बहुत ही सबको है ना, सबको मिलेगा। तो बस जी इसलिए बोला एक वक्त सेंसिटाइजेशन करेगा, दिन के बाद या कुछ महीने के बाद या कुछ साल के बाद वो त्याग देगा जी, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा धीरे धीरे सब कुछ त्याग देगा और निष्कंचन भक्त बन जाएगा। फिर ये सब एक्सपीरियंस हम करेंगे, सबको मिलेगा ये एक्सपीरियंस दोनों की देखा। इसलिए प्रभुपाद जी रिपोर्ट में लिखते हैं, without self control, without performing purity, without sacrificing one's wealth, you cannot get Krishna. ततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विकासः। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, भगवद गीता सेकंड चैप्टर शायद 54 या 54, सजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोरथम् आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो श्लोक से लेकर लास्ट श्लोक तक एषा ब्राह्मे स्तुति पार्थ दैवं प्राप्य विनोह्यति स्थितवासी अंतकालेषु ब्रह्म निर्वाण उच्यते। ये 18 श्लोक है। कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है, उनका वर्णन कर रहे हैं। श्री वैष्णव सत्युग में ये 18 श्लोक को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वो लोग रामानुजा वगैरह बहुत ही सारा डीप कमेंट्री किए थे, बहुत ही। हमने सुना गांधी जी भी वही 18 श्लोक रोज पारायण करते थे। तो ये श्लोक है स्थित प्रज्ञ कैसा बनना है वर्णन किए थे। तो स्थित प्रज्ञ बने बिना प्रभुपाद जी वही लिखते हैं, स्थित प्रज्ञ बने बिना कृष्ण भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात याद रखें। कृष्ण भगवान 10वें स्कंद भागवतम में युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज मैसेज भेजे थे नारद मुनि के द्वारा, तो हम राजसीय सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, आप आके हमको गाइड कीजिए। तो तुरंत आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे, तुरंत कृष्ण भगवान ने एंटीराइज के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को प्रशंसा करते हैं कि आपके पास अधिकार है, अपनी लायक है राजसीय यज्ञ संपन्न करने के लिए। इस संदर्भ में कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आप 5 पांडव मुझे काउंटर कर दिया, मुझे जीत लिया, मेरा मन को, मेरा चित्त को जीत लिए, क्योंकि आप लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल किए थे, इंद्रिय निग्रह किए थे, इसलिए आप इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। ये मैं आपके सामने हार गया, तो आपने इंद्रियों को हरा के मुझे हरा दिया। ये इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बात ये कभी नहीं समझना है कि कृष्ण भक्ति भी करेंगे, सेंस एंजॉयमेंट भी करेंगे, ये दोनों
तो यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः। भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं यततो हि अपि कौन्तेय, जो लोग इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, यतता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कभी कभी अपने इंद्रियों के ऊपर काबू खो जाते हैं, खो देते हैं, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः। क्योंकि ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही पावरफुल है। इंद्रियां बहुत ही पावरफुल है, इसलिए महाराज कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य चौरिभिः प्रभु बलिभिः इंद्रिय नामधेय मोहांध कूप कुहर प्रणिपातितस्य वेवेश देहि उपनस्य करावलंबम। महाराज कुलक्षेत्र का एक प्रार्थना है। आप लोग को जानना चाहिए हमारे पास सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? कौन बोल सकता है? हमारे पास जो बहुमूल्य संपत्ति, मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी दैट वी हैव, एसेट we have, what is that asset? Can somebody tell? तो जी जीवा और क्या है आपके पास संपत्ति? हेलो, अपना जीवा, संग। संग। Anybody else? Yeah, devotion to Lord, probably. Or devotion to Lord. एसेट। हमारे सबसे बहुमूल्य एसेट है हमारा इंटेलिजेंस, विवेक है। विवेक तो कभी खो नहीं पाएगा। इतना नहीं लूज इंटेलिजेंस, विवेक है। तो महाधनस्य, महाराज कृष्ण बोल रहे हैं, महाधनस्य, महाधन है मेरा। क्या है? कृत विवेक। कृत का मतलब हो गया, विवेक। कौन चुरा लिया? चोरी भी। देयर इज वन बिग थीफ, देयर इज अ थीफ। हमारा सबसे बड़ा थीफ, चोर कौन है? बलि भी, प्रभु बलि भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेरी पावरफुल एनिमी। उसका नाम है इंद्रिय नाम। मोहांध कूप कुहरा विनिपातितस्य, ये संसार नाम के ये गहरी कुआं में धकेल दिया ये इंद्रियों ने मुझे। अरे मेरे बल से, अपने बल से ये कुआं से अब बाहर नहीं आ सकता हूँ प्रभु। इसलिए देवेश देवी, देवों का देव और कृष्ण भगवान, आपका हाथ कमल दीजिए और मुझे ये अंधकूप से, अंध कुआं से हमको निकालिए। और प्रार्थना हमको भी करना चाहिए। आनि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यतेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आनि सर्वाणि संयम्य, इसलिए वो इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये रखना, आनि सर्वाणि संयम्य। कैसे? युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु, आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु। इज इट फॉर एवरीबडी? आई एम नॉट एबल टू हियर इट क्लियर। क्लियर फॉर यू सूरज माता? बीच में यस, बीच में क्लियर आते प्रभु, देन इट बिकम्स वेरी स्लो। हाँ, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बीच में क्लियर हो रहा है, फिर अगेन इट इज गोइंग।
ये तो वॉल्यूम तो हाई है, ओके क्या करें? ओके प्रभु। अभी अभी ठीक है? थोड़ा कम है प्रभु जी, या ओके प्रभु। सिस्टम में गलत है शायद, क्योंकि ये तो हाई में है। ओके ओके प्रभु। युक्त आसीत मत परा तो शरण, कृष्ण भगवान को शरण लेके, मेरा शरण लेके, तुम्हारा चित्त मुझ में लगा के, युक्त करके अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। भगवान बोले अच्छे ही अच्छे इंद्रियों सबसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित। आप लोग सब लोग जानते हो, जाए तो विषयांत हिंसा, संग से सुख जाए तो संगात, संगाए तो कामात, कामात के उड़ जाए तो, ये सब ये विषयों के प्रति ध्यान करने से हम ये इसमें हम फंस जाते हैं। और भगवान बोलते हैं राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये श्लोक जानते हैं आप लोग? सुनाई पड़ रहे हैं अभी? हाँ हाँ ये श्लोक जानते हैं आप लोग? ये जी प्रभु जी। रागद्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कृष्ण भगवान के प्रसाद ऐसा प्राप्त करना है, भगवान बोल रहे हैं। प्रसाद का मतलब मर्सी, कृपा। ऐसा रागद्वेषा विमुक्तैस्तु, राग और द्वेष से मुक्त होके, कंप्लीटली विमुक्ता मीन्स कंप्लीटली मुक्त होके, विषयान इंद्रियश्चरन् और आत्मवश्ये विधेयात्मा। प्रभुपाद जी इस विषय में लिखते हैं, one must follow the regulative principles of freedom। ये जो 4 regulative principles है, प्रभुपाद जी बोलते हैं regulative principles of freedom है, तो स्वतंत्रता कर देते हैं। इसलिए हमको इसको रागद्वेष विमुक्त, तो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरश्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब मेरा कृपा मिलेगी, ये 3 तापों से आप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा बुद्धि स्थिर हो जाएगा। नास्ति बुद्धि रहित प्रत्यय नचा इतस्य भावना नचा भावे तो शांति शांतस्य सुखम। Without steady mind and intelligence, how can there be peace? And without peace, how there can be happiness? ऐसे भगवान बोल रहे थे। तो ये पूरा 18 श्लोक में भगवान इसी के ऊपर जोर देते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करो। कैसे? युक्त आसीत मत करो, तो मुझ में लगा के, मेरे चरण कमल में तुम्हारा मन को लगा के तुम्हारा इंद्रियों को कंट्रोल करो। ऐसा इसलिए ऐसा करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त होगा करके भगवान 6वां स्कंद भागवतम में बोलते हैं। ये ना नारद अंगीर उभयोपि व्याकृतम अनुशासनम संसिद्धोपि राजन विद्यया दर्शनान्ने। महाराज चित्रकेतु भगवान की दर्शन, उनका भगवान शंकरशन भगवान का अनंत कोश का जब दर्शन प्राप्त हुई थी, फिर भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होके फर्स्ट श्लोक में यही बोलते हैं, येन नारद अंगीर उभयोपि। ये जो नारद मुनि और अंगीर मुनि का व्याकृतम में अनुशासनम, उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके करने के वजह से, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के वजह से संसिद्ध
हे राजन, तुमको सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो सिद्धि क्या है? विद्या दर्शनम में, तेरा दर्शन तुमको मिला। तो इसलिए हमारा लाइफ का परफेक्शन है भगवान कृष्ण भगवान की दर्शन मिलना, फेस टू फेस मिलना। ये सब हमको इच्छा करना चाहिए, ये भगवान आपका दर्शन कब मिलेगा मुझे, तो आप प्लीज दर्शन दीजिए। चौथा स्कंद आगे तो 24 चैप्टर में रुद्र गीता में भगवान बोलते हैं, भगवान शंकर बोलते हैं कि दर्शनम नो दिदृक्षाणाम देहि भागवतार्चया रूपम प्रीतिमयं स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणान्गुणम दर्शनम नो दिदृक्षाणाम। दिदृक्षा मीन्स आई एम वेरी ईगर माय डियर लॉर्ड, प्लीज गिव मी योर दर्शन। तो कौन सा रूप को दर्शन देने को बोल रहे हैं? जो आपके प्रिय भक्त आपको पूछते हैं वो है कृष्ण भगवान का रूप। हमको इच्छा रखना चाहिए कि हे भगवान आपका दर्शन कब मिलेगा, ऐसा नहीं कि कैजुअल है। इसलिए हम भी प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए। उनको कृष्ण राधा और कृष्ण का दर्शन चाहिए, तो फेस टू फेस प्रभुपाद जी सबसे हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ योगा, मीटिंग कृष्णा फेस टू फेस, चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। ऐसा उनको के बाद है ना भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आप सेवा में हमेशा लगा के रखिए ऐसा। तो महाराज चित्रकूट भी वही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपका सेवा में लगा के रखें, आपका भक्तों का सेवा में लगा के रखें, ऐसा करके प्रार्थना करते हो। ये रुचि नहीं चाहिए। हम हरे तव पादैक मूलम आसान दासा दाश्मीयः अनस्मरेताश पते गुणांस्ते नीत वाक्कर्म करोतु कायः। हम हरे तव पादैक मूलम आसान दासा दाश्मीयः। हे भगवान, मैं आपके दास का दास कभी बनूंगा। ओ लॉर्ड ऑफ माय मास्टर अनस्मरेताश पते गुणांस्ते, मैं आपका मेरा वापस आप मेरा स्वामी कब बनेंगे। गृणीत वाक्कर्म करोत कायः, मेरा वचन, मेरा तन, मेरा मन सब कुछ आपका सेवा में कब लगेंगे। ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। धृतराष्ट्र वही महाराज चित्रकूट अगला जन्म में। और नानाथ पृष्ठम तटपारमेष्टम सार्वभौमं नरसाधिपत्यं योग सिद्धि पुनर्भवं मंगते त्वां विरहय समस्त। मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, नानाथ पृष्ठम तटपारमेष्टम, डोंट वांट ब्रह्मलोक, डोंट विल ब्रह्मलोक। और न सार्वभौमम, पृथ्वी का चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, और न रसाधिपत्यम, सुतल पाताल उनका वो लोग में अपनी नायक नहीं बनना चाहता। फिर ना योग सिद्धि नहीं चाहिए, योग में अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अरे बाबा क्या चाहिए तुमको? आपकी चरण कमल की सेवा। समंजस जाता रहे कांक्षा, आपके सेवा नहीं हो जिधर, मुझे नहीं चाहिए ये सब। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए हमको भी कि भगवान जब कभी मेरा सारे इंद्रिया उसका सेवा में लगेगा। तो इसलिए एक बार लंदन टेम्पल ओपनिंग के बाद यमुना माता जी, एक्चुअली प्रभुपाद जी यमुना माता जी और मालती माता जी ये सबको ट्रेनिंग दिए थे, क्योंकि वो राधा कृष्णा डीटी इस्कॉन में पहला डीटी है राधा लंदन में। फिर बहुत परिश्रम करके
मंदिर बनाए थे लंदन में प्रभुपाद जी के शिष्य, और उसके बाद प्रभुपाद जी आए थे इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए। फिर बहुत ही धूमधाम से हुआ था इंस्टॉलेशन सेरेमनी। प्रभुपाद जी लंदन ईश्वर के नाम भी रखे थे। सोहो स्ट्रीट, अभी सोहो स्ट्रीट में है मंदिर। फिर उस टाइम प्रभुपाद जी स्वयं मैंने अपना ये यमुना माता जी सबको ड्रेस कैसा बनना चाहिए प्रभुपाद जी उनको सिखाए, ड्रेस बनाना सिखाए थे। तो यमुना माता जी सब खुद ड्रेस डिजाइन किए थे, कपड़ा खरीदे थे और सिलाए थे, डिजाइन एम्ब्रॉयडरी भी कराए थे, खुद अपने हाथों से करते थे। उस टाइम इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था। फिर माला अपने जानते हैं कृष्ण भगवान की चादर, राधा रानी का चादर, ये सब हवा में उड़ते हैं, ऐसा हम बांधते हैं ऊपर करके। तो जी बोला जब राधा और कृष्णा नाचते हैं, उसका चादर और कृष्ण का चादर और राधा रानी का पल्लू हवा में उड़ता है, ये डांसिंग राधा कृष्ण है। ये हम वो ऐसा हम ड्रेसिंग करते हैं। फिर यमुना माता जी बहुत ही श्रद्धा से प्रेम पूर्वक दर्शन ले रहे थे राधा लंदनेश्वर का। फिर प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए थे, यमुना माता जी को ऑब्जर्व किए थे। तो प्रभुपाद जी जब गए यमुना माता जी से पूछे, डू यू लाइक व्हाट यू आर सीइंग? यमुना माता जी रिप्लाइड, यस प्रभुपाद, आई लव। तो said, just follow the process I have given. मैंने जो प्रोसेस दिया था उसको फॉलो करो, चैंटिंग 16 राउंड, फॉलोइंग रेगुलेटिंग इन ड्यूटी वर्शिप। ये सब करने से आप लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, आपको भी भगवान का दर्शन मिलेगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी आश्वासन दिए थे। जैसा कि प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी का स्पिरिचुअल मास्टर, वो बोलते थे जब कोई भी लखपति नहीं है तो कृष्ण भगवान उनका हाथों से प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। फिर लखपति कौन है? जो 1 लाख नाम लेता है उसको बोलते हैं लखपति। तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत बोलते थे 64 माला के बिना आप भोग ऑफर करेंगे, भगवान नहीं पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी पूछे थे आपका स्पिरिचुअल मास्टर 64 माला नहीं किया तो पतित कहते थे, आप बोल रहे हैं 16 माला जब करने से आप भगवान का धाम चले जाएंगे, ऐसा कैसा? प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिए थे, मेरा गुरु महाराज to take his disciples to front door of गोलोक वृंदावन, मैं मेरा डिसाइपल्स को बैक डोर ऑफ गोलोक वृंदावन से लेके जाऊंगा, ऐसा बोलते प्रभुपाद जी प्रॉमिस किए थे। तो ये मत सोचना अरे ऐसा कैसा, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया था। प्रभुपाद जी हमको लेके जाएंगे, स्वयं आएंगे प्रभुपाद जी। बहुत सारे डिवोटी एक्सपीरियंस बताए थे कि प्रभुपाद जी आए थे, लेके गए डिसाइपल्स को, प्रभुपाद जी स्वयं आए थे। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भक्ति इज दुर्लभ, वेरी डिफिकल्ट टू गेट, इजी टू प्रैक्टिस। बहुत ही आसान तरीके से हम कृष्ण भक्ति हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसान है, पेंटिंग करो ऐसा। ये हमको बहुत ही सावधानी से फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी, किसी ने प्रभुपाद जी को पूछे थे, प्रभुपाद हम गोलोक वृंदावन में वापस मिलेंगे? प्रेमानंद प्रभु पूछते थे। जिन्होंने बोला जरूर मिलेंगे। एक बार भवानंद प्रभु भी पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान
गोलोक वृंदावन में आपके साथ कनेक्शन रहेगा? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, यस, अनलेस आई रिकमेंड यू, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट यू। प्रभुपाद जी ने फिर ब्रह्मानंद प्रभु से प्रभुपाद जी बोल रहे थे, जब वैकुंठवासी गोलोक वृंदावन में आते हैं, हम सबको देखेंगे, देखते हैं, वो लोग कमेंट करेंगे, व्हाट ए नाइस स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट नाइस डिसाइपल्स, बेस्ट, ऐसा करके अब कमेंट करेंगे, ऐसा करके फिर हमको सिर्फ प्रभुपाद जी का चरण पकड़ के रहना चाहिए, बस हमारा लाइफ भी परफेक्ट हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद, शुद्ध भक्तों को भी एंजाइटी होता है, एंजाइटी होता है, टेंशन होता है? प्रभुपाद जी बोला, यूजुअली शुद्ध भक्तों को टेंशन नहीं रहता है, एंजाइटी नहीं रहता है, लेकिन मेरे को एक एंजाइटी है तो बड़ा। शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आपका क्या एंजाइटी है? फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आज कृष्ण के लंच बॉक्स में क्या है, क्या पैक किया है, क्या पैक किया है, संदेश या कचौड़ी? प्रभुपाद जी ने, मेरा एंजाइटी वो है, मेरा लंच बॉक्स में क्या पैक किया है। फिर बाद में प्रभुपाद जी कमेंट किए थे, the destiny of all Hare Krishna devotees is to join the picnic party of Krishna and Balaram. बिल्कुल प्रभुपाद जी भविष्यवाणी किए थे। एक बार सुदामा प्रभु जब सबसे डिफिकल्ट क्षेत्र है प्रीचिंग के लिए जापान, क्योंकि उधर सारे रोबोट जैसा लोग रहते हैं, एकदम मशीन जैसा, डिसिप्लिन, वेरी पंक्चुअल, ये रोबोट जैसे हैं वो लोग। फिर बुद्धिज्म बहुत प्रचार हुआ था। फिर प्रभुपाद जी चाहते थे देश देश में, नगर नगर में, शहर शहर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, इसलिए प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स का मीटिंग रखे थे एक दिन। फिर प्रभुपाद जी पूछ रहे थे, जापान में कौन जाएगा, जापान में कौन जाके कौन टीचिंग करेगा? फिर प्रभुपाद जी ने बोला, कोई भी जापान में जाके टीचिंग करेगा उसको मैं स्वयं आके लेके जाऊंगा गोलोक वृंदावन। फिर सुदामा प्रभु करके एक ब्लैक डिवोटी थे, उन्होंने अपने हाथों पे किए, प्रभुपाद जी मैं ही जाऊंगा। फिर भी बहुत ही यंग लड़का है, वो गया था, बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर भी बैठ के कीर्तन करता हुआ और थोड़ा बहुत मैगजीन्स वगैरह बेचता था, ऐसा करके कैसा भी करके बहुत स्ट्रगल किया था। पहले बहुत स्ट्रगल किया जापान में प्रीचिंग करने के लिए। फिर उसके बाद कैसा भी वक्त बने हैं। फिर बाद में सुदामा प्रभु महाराज बन गए, महाराज से वापस गृहस्थ बन गए, पूरा फोल्डर हो गया था। फिर बाद में उनका लास्ट डेट में उसको कैंसर ऐसा कुछ आ गया था, फिर मरने वाले थे। उनके मम्मी ने, उसको पता था कि जवानी के दिनों में कृष्ण भक्त थे, इसलिए लास्ट में इस मंदिर में लाके छोड़ दिया था सुदामा प्रभु। फिर कैसा भी करके भक्त लोग उसको शेल्टर दिए थे, फिर वापस उसको ट्रेनिंग वगैरह दिए थे, फिर वापस उसको चैंटिंग वगैरह कराए थे। फिर लास्ट डे में विला पहनाए थे, लास्ट डे, क्योंकि उसको बीमारी था, कैंसर वगैरह था। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी ऐसे करके उन्होंने बोला और अपने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी को देखा था उन्होंने, मुझे आए हैं उसको लेके जाने के लिए। वैसा ही उपेंद्र प्रभु जयद्वैत महाराज तो स्वयं देखे थे। उपेंद्र प्रभु जब 1967 में जब प्रभुपाद जी इंडिया आए थे, उन्होंने कोकोनट ग्रेटिंग मशीन लेके गए थे।
प्रभुपाद जी को कोकोनट लड्डू बहुत पसंद था। प्रभुपाद जी ने बोला तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ, लड्डू बना के खिलाओ, आई तुमको गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा, प्रॉमिस किया था। फिर बाद में उपेंद्र प्रभु कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बाद प्रभुपाद जी का केन उनका स्टिक दिया था उनको, फिर बाद हमेशा स्टिक रहता था, प्रभुपाद जी का स्टिक उनके पास था। फिर ऑस्ट्रेलिया में जयदत्त महाराज के अंग में उन्होंने प्रभुपाद जी को देखे थे। प्रभुपाद फिर उन्होंने शरीर त्याग लिया, और प्रभुपाद जी को केन स्टिक को पकड़ के अपने हृदय में लगा के उन्हें शरीर त्याग दिया। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु का लाइफ परफेक्ट हो गया, गोलोक वृंदावन चला गया करके सर्टिफिकेट दिए थे प्रभुपाद जी, क्योंकि जयानंद प्रभु स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे प्रभुपाद जी का सारे इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद जी ने बोला जयानंदा ही इज अ वेरी नाइस डिवोटी, सिंपल डिवोटी, आई हैव सीन हिम while driving the taxi he is always chanting Hare Krishna. प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था how do I make you happy? प्रभुपाद जी ने बोला if you chant Hare Krishna, if you are happy I am happy. Then that Mataji asked how can I be happy? If you chant Hare Krishna you will be very happy. प्रभुपाद जी का डिमांड बहुत ही है, इसलिए ये जो श्लोक के अनुसार जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा था परपोर्ट में, जो भी प्रभुपाद जी का प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे हमारा लाइफ भी परफेक्ट, यही लाइफ में परफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट लाइफ के लिए पोस्टपोन मत कीजिए, यानी किधर जन्म लेगा, किधर जन्म होगा, क्या कैसे जन्म लेंगे, कैसा स्थिति में। जस्ट इमेजिन टेकिंग बर्थ इन गाजा, पैलेस्टीन, रशिया, यूक्रेन, इतना सारे यूक्रेन के लोग मारे गए, अफगानिस्तान, पता नहीं किधर जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, इसलिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमको कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करके जब प्रभुपाद जी का किताब हमेशा पढ़ना चाहिए, भक्ति को खास करके भक्ति दशामृत पढ़ना चाहिए। जब भी कांग्रेगेशन होता है डिवोटीज का, उधर कीर्तन में जोर से नाचना चाहिए। बहुत सारे लोग कीर्तन होता रहता है, मोबाइल पकड़ के मोबाइल में बिजी रह जाते हैं। हम देखते हैं जगह टाइम में भी डिवोटी लोग कीर्तन छोड़ के मोबाइल में बिजी हो जाते, ये सब गलत है। कीर्तन में नाचना चाहिए, कीर्तन में नाचना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ये सब करने से चैंटिंग श्रद्धा से करना चाहिए। मैंने 2016 में मैंने पढ़ लिया था, आई हैव टेकन अ वॉक। अभी 7 साल हो गया वो फॉलो करता हूँ। चैंटिंग के टाइम पे मोबाइल को टच नहीं करें, बहुत ही फायदा हुआ है, बहुत ही लाभदायक भी कर सकते हैं। भाई मेरे को जब 2008 में जब डायबिटीज आया था, उसके बाद मैं वॉकिंग करके चैंटिंग करता था, एक्सरसाइज कम वॉकिंग। ऐसा चैंटिंग में कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने और एक पढ़ लिया, एक ही जगह में बैठ के सारे 16 माला जप करके मैं उठूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा और वॉकिंग नहीं करूंगा, मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा। ये सब मेरे को बहुत ही लाभदायक हुआ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वॉकिंग और चैंटिंग छोड़ दीजिए, और चैंटिंग के टाइम पे मोबाइल मत पकड़ना, तो इनअटेंटिव चैंटिंग हो जाता है। फिर ऐसा चैंटिंग से स्वर्ग लोक मिलेगा, गोलोक वृंदावन में इनअटेंटिव चैंटिंग। इसलिए ये सब फॉलो करने से बहुत ही सिंपल बना दिया प्रभुपाद जी। विभूति जैसा, कर्दमुनि जैसा तपस्या करने का जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल फॉलो करके बहुत सारे भगवान बोलते हैं अहो ज्ञान तपस्या इतरा आग भाई मन मया माम उपास
बहवो ज्ञानतपसा पूर्वमद्भावम् आगता। बहवो मीन्स बहुत लोग ये प्रोसेस फॉलो करके शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। वैसा ही बहुत सारे डिवोटी लोग ये प्रोसेस फॉलो करके गोलोकुंडान चले गए इस काल में हमारे सामने। इसलिए हमको भी ऐसे भक्तों को देख के प्रोत्साहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये फॉल डाउन हो गया, वो फॉल डाउन हो गया, उसको देख के निरुत्साह नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ऐसा करके तो देवहूति जैसा लाइफ परफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जैसा कि देवहूति लैमेंटिंग कर रही है, अशोक कर रही है, हमको भी ऐसा स्थिति हम पहुंचेंगे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया वो इंस्टेंस ग्रेटिफिकेशन में। अच्छा होता तो मैं भी लैमेंटेशन कर। मैं अभी इतना सारे श्लोक मैं सीखता हूँ, मेरे को किसी ने इंस्पिरेशन मिला, मैं सोचता हूँ अरे इतने साल मैंने वेस्ट कर दिया। पहले मालूम होता मैं भी अभी तक पूरा भागवतम सीख लेता, ऐसा करके मेरा शौक होता है। तो इतना टाइम वेस्ट मैंने कर दिया, ये देखिए ये करके वो करके सो के। मैं अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ श्लोक सीखने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। हम सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक टाइम हो गया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई कुछ कमेंट्स है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। और ऐसे ही हम लोग आपका संग लेते रहेंगे प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इसको की जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।